Should you use dating apps? So I'll start off by saying कि यार dating apps एक तो ना लड़कों के लिए नहीं बनी है। So bad for left. हमने पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा था। एक लड़की की नॉर्मल सेल्फी डाल दी थी, एक दिन में 1500 मैचेस आ रहे हैं। मैच टू 50 प्लस, अरे 100 मैच तो आ गए भाई, हमने तो स्वाइपिंग ही नहीं स्टार्ट करी है। और वहीं दूसरे लड़के का डाला था, उसके टोटल 10 या 12 मैचेस आ रहे हैं। डेटिंग ऐप्स का फाइनली डिक्लाइन आ रहा है बिकॉज पीपल आर मूविंग टू रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस, दे आर मूविंग ऑफलाइन, दे आर मूविंग टू थिंग्स लाइक रन क्लब्स। काफी लोगों को ये है माइंडसेट कि आई एम एन इंट्रोवर्ट। एब्सोल्यूट फकिंग बुलशिट, सब बकवास है। आप ना तो शाय हो ना इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि अगर आप शाय होते तो आप अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ हंसी खुशी करके क्यों ओपन अप हो जाते हो? अगर लड़का बोल रहा है कि आई एम नॉट श्योर, या फिर बोल रहा है देखते हैं कहाँ जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर अ कनेक्शन, आई एम बिजी इन माय करियर, व्हिच आर ऑल फकबॉय लाइंस दैट वी यूज्ड एंड आई हैव यूज्ड इन माय पास्ट, नथिंग इज एवर गोना हैपन। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो लड़कियों को लगती है, लड़कों के लिए, इट्स नॉट नेसेसरीली मनी एंड एवरीथिंग, इट्स एम्बिशन। दैट इज व्हाट गेट्स पीपल फायर्ड अप। Is it okay for a man to cry? अरे लड़के नहीं रोते यार। So all women say कि men need to cry and ये अच्छा है, but once a man starts to cry, वो वहाँ पे turn off हो जाते हैं। Why is it the man's prerogative to create the Because women control sex. So excited to have you here. Same, we're meeting for like the third time. Absolutely. I think you're the most I've actually interacted with as a guest at my podcast. So congratulations. Obviously, there's a lot to be said. Thank you. Let me start with one. I, of course, know about your work. You help thousands and thousands of young boys get confident, find their voice, find relationships. लेकिन मैं, and maybe that's what I want to start this conversation with, that all these young men who come to you, they all come with different insecurities, right? उसमें से उनकी top 3 insecurities क्या होती हैं? Right. I'll start with the first one, which is very common, but किसी को पता नहीं चलता है कि इतना है, is their skin color. Really? Yeah. Really? It's because they feel कि मैं dark skinned हूँ और इसलिए कोई मेरे को like नहीं करेगा. So this is an Indian man. Yes. I One of the always- biggest things. I always thought this was a girl problem. Fair And and it's lovely guy होनी चाहिए, लड़कियों को गोरा होना चाहिए, लड़कियों के लिए ठीक. I know, लड़कों का भी, and you know where this stems from, because जब आप स्कूल में होते हो, that's when you've been bullied on this particular thing. You get nicknames like तू तो काला है, तू कल्लू है, तू ऐसा है, तू वैसा है, रात को दिखता नहीं है, and everyone has had that while growing up. So that becomes a very deeper insecurity when you grow up. And sometimes girls can also be mean. वो बोल देते हैं किसी को, why would anybody date you? तू अपनी शक्ल देख जाके, and that becomes, और वो इतना insecurity भी नहीं है, that goes into shame because you can't even change your skin color. So helping You don't even guys, realize it. you don't realize it. And you don't even realize it because आप इतनी flippantly बोल देते हो, आपको लगता, like, I think लड़की से ये बोलने में आप फिर भी हिचकिचाओगे, लेकिन लड़की को बोलने में कभी नहीं सोचते हो. You'll say anything. You'll just say anything. And even now, अब जैसे internet आ गया, and the internet is brutal. It will just say anything to anyone, and then you can feel insecure किसी भी चीज़ की वजह से. So skin color is like the number one thing जो बहुत deep है. And anytime I do a webinar, which is like every week, people really feel that कि यार ये कोई बोलता नहीं है. Also because accepting it and saying it also, people feel कि वो हमें ही बोलेंगे कि हम racist हैं. और हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं, ये तो हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं? You just made it up, तुम्हारे Yeah. दिमाग में है, किसी ने कुछ बोला तो Yeah, no नहीं one है. acknowledges it. वो बस बोलते हैं भाई just be confident, just be yourself, इतना फर्क नहीं पड़ता है. And no one gets to the root cause, which gets to real shame जो अंदर से है, जो बचपन से चलती हुई आ रही है. And maybe a part of it is also कि आप इसके बारे में भी कुछ कर नहीं सकते हो. Yeah, It's- that's also there. You can't do anything about it. And then secondly would be someone's height. Okay. So height का ये होता है, like there is, I've seen guys who are very confident if they're in the 5'8" to like the 6 feet 6'1" category. Anything above 6'1" and anything below 5'8", everyone's insecure. So Even sorry, above- even tall guys are insecure. Yeah, even above like 6'2", because उनको भी they're like, yeah, girls have said you're too tall for me, because girls are generally like 5'4", 5'5", so they feel insecure. And at the same time, you stand out very easily if you're 6'3", or 6'4". So we've had some clients that are 6'3" and 6'4" that come to us, and they have a very difficult time in their dating life. The reason is that there are some girls that will like
really tall guys, and those girls will approach them and they will have some attention from them. But the problem is the girls that they want to date, वो choice उनके पास नहीं होता है. So because they don't have that confidence to go up and talk to them. And वो कभी बना भी नहीं है because उनकी entire life has revolved around ओए मैं तो लंबा हूँ, मैं तो 6'4" हूँ, my height is 6'4", so I will get any girl. But उसकी वजह से they don't get the girl that they want. So Interesting. You know, it's very funny. I had put up a post on Instagram. I put up a question, and the question was: is success easier for the people who fit in, or those that stand out? What did you know? get? And I almost had 45% of the people Yeah. said it's easier for people who fit in. 55% of the people said कि it's for the people who stand out. Yeah. So I think एक बहुत ज़्यादा there is this mental pressure to just Yeah. stay in the mean. Yeah. median में रहेंगे तो सब ठीक है. Correct. बड़े हैं तो ज़्यादा या कम will Yeah. be a... Even like when you talk about things, जैसे career advice जब किसी को दे रहे होते हैं, when I was growing up, parents were like कि इस field में बहुत ज़्यादा scope है, इसमें बिल्कुल scope नहीं है. But when you think about things like scope, you're only looking at averages. आप बस देख रहे हो कि averagely लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना success है. But जो top पे लोग होते हैं, वो हमेशा ही पैसा कमा रहे होते हैं. बेशक वो art हो या sports हो या content creation हो. So even offbeat careers में लोग पैसा कमा रहे हैं. But अगर आपकी mentality average रहने की है, तो आपका कुछ हो ही नहीं That's सकता what है. we encourage to हाँ. with. So you're talking about insecurities. We talked about color, Color, height, height. and weight. Yeah, looks, which would be your weight, your skin color, your height, acne, anything. तो looks के ऊपर बहुत आ जाता है कि कोई लड़की मेरे से बात क्यों करेगी जब मेरे से better लड़के हैं, या फिर there are other guys जिनके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है. So money is also another one which is a very big deal. So if I had to put this, I'll probably say the top insecurity for a man today is कि वो कैसे दिखते हैं. Yeah, And then the second level would be money, money. what they've done in life. Okay. So Yeah. money or what they've done in life. Like what? It's pretty linked because like when you're 20, 21, then nobody expects you to कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होएगा. But that same person when he's 30 years old, if you're going to ask a girl's hand शादी के लिए उसके फादर से बात करने जा रहे हो, तो बाप पूछता है कि भाई आपने करा क्या, आप क्या करते हो, इतने 10 साल में जो आपने काम करा, आपने क्या करा है या नहीं करा है. एंड वहाँ पे एक वो कॉन्वर्सेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जहाँ पे आप बोल रहे हो मैं तो बस स्ट्रगल ही कर रहा हूँ. सो इट डज बिकम अ प्रॉब्लम अगर आप लॉन्ग टर्म डेटिंग के लिए देख रहे हो स्पेसिफिकली. Or so the first is looks, the second is Money. money, Yeah. and the third would be Third would be, I don't know, I think this covers all of it. But third would be confidence. उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है लड़की से बात करने का. उनको लगता है वो उनको लाइक नहीं करेगी, या फिर बिकॉज कभी पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है लड़कियों से बात करने में. क्योंकि पूरे टाइम द कल्चर जो इंडिया में रहता है, एंड राइटली सो, राइट, पेरेंट्स हमेशा पुश करते हैं कि यार पढ़ाई लिखाई कर लो, ये सोशलाइजिंग करना, लोगों से बात करना, लड़कियों से बात करना तो आवारागर्दी है, इसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है. करियर सेट कर लो, एक बार पैसे आ जाएंगे तो लड़कियां अपने आप आ जाएंगी. तो सडनली आप 25, 28, 30 साल के होते हो, आपका पैसा सही है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट नाउ यू रियलाइज कि अगर आप अरेंज मैरिज में भी किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, आपको बात करनी नहीं आती है. क्योंकि आपका रेज्यूमे देख because you've के never tried it. you never tried it. You've never been told that. And as Indians, we have a checklist, right? Yeah. Maths में अच्छा होना चाहिए, English में होना चाहिए. मतलब that लड़कियों से बात करना, ये लोगों से बात करना Yeah, was never on that Exactly. checklist per se. And I guess here's my follow-on. So we've talked about Indian man typically having 3 insecurities, which is pretty much पैसे नहीं है, looks नहीं है, confidence नहीं है. मतलब अगर आप उसको रियलिटी से मैप करें, राइट, कि मुझे लगता है, और इफ आई टू फ्रेम इट इन अ डिफरेंट वे, दैट इफ आई मोस्टली आस्क्ड अ मैन एंड आई सेड कि यार ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 रैंक योरसेल्फ, एंड इफ ही सेड ही वाज अ 7 or a 8, would that be accurate, or does he think he is worse off or better off than he actually is? It depends. If somebody is ranking him lower than a 7, I'm pretty sure he's better, or at least you can make him better. कि आप कपड़े पहनना, ग्रूम करना, वो सारी चीज़ें सिखा दो तो आप थोड़ा better feel करते हो. But if somebody is ranking him at a 7 and 8, I think that's realistic, because when you were saying that question, I was thinking in my mind, I think I would rate myself at like a 8 or a 9, because there's always room for improvement, and I'm not that bad that I would be like a 6.
तो आई थिंक रियलिस्टिक है. If someone is like I'm a 10 on 10, so there's some level of delusion and some level of narcissism, 100%. No, but again, my question is, जो लोग आपसे मिलते हैं, how accurate are they about their actual condition? Do you think they are more pessimistic, or do they think they are more optimistic? They're more pessimistic. वो pessimistic ज़्यादा हैं. उनके हिसाब से लाइफ में क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा रहता है रादर दैन कि लाइफ में क्या हो रहा है. सो हम ना सर्वे करते हैं जब भी कोई एक कोचिंग प्रोग्राम के लिए आता है हमारे पास. सो सर्वे में स्टार्टिंग में वी आस्क देम टू रेट देमसेल्व्स ऑन लुक्स, और फिर ओवरऑल 1 to 10 में आप क्या रेट करोगे. एंड देन 5-10 मेट्रिक्स और हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, फियर टू टॉक टू समवन, डू यू थिंक यूर फनी, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, कनेक्शन बिल्डिंग कैसा है, कॉन्वर्सेशन स्किल्स क्या है. सो जनरली जब लोग आते हैं देर एट अ 3 on 10. Okay. मोस्टली ऑन एन एवरेज वो 3-4 रेट करते हैं. ओवरऑल रेटिंग उनकी 5 या 6 रहती है. एंड देन इन 90 days दैट शूट्स अप टू अ 8 or a 9. सो उससे हम मेजर कर सकते हैं कि क्या है. बट अगैन येस, टू आंसर योर क्वेश्चन, ज़्यादातर पेसिमिस्टिक ही रहते हैं कि मैंने ये नहीं करा है या मेरे से कुछ चीज़ नहीं हो पाती है. एंड वन बिग रीज़न इज मैन आर ऑलवेज टॉट कि आपने लाइफ में क्या करा है उसके ऊपर आपका वैल्यू है, rather than बस एग्जिस्ट करने का. And this narrative is there everywhere, like when a boy is born, Yeah. till the age of like let's say 6-7 तक तो cute baby this and that, girls, elder family members वो आ रहे हैं, किस कर रहे हैं, उठा रहे हैं. Suddenly when he's in the teenage तो फिर भाई ये तो शैतान बच्चा हो गया है. Once you're 18, 19, 20 तब या तो करियर की बातें होती हैं या शादी की बातें होती हैं बस. एंड देन वो डिस्कशन फिर वहाँ पे चला जाता है, और फिर हर बारी क्या काम करते हो, आपने क्या करा है, क्या नहीं करा है. सो दैट प्रेशर स्टार्ट्स टू कम, एंड वो परफॉर्म करने का प्रेशर लड़कों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होता है. And this stays and it compounds again and again, right? Yeah. कि लड़की को सुंदर होना चाहिए, लड़के की जॉब क्या होना चाहिए, Yeah. you know, what is your salary package? Right. And do you think even in 2026, this is still the reality that a boy faces every day? Yeah, and so the older I'm getting, जितना मैं लाइफ एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, उतना more I'm getting to experience things and I'm coming to realize कि it's not कि बिल्कुल ही मतलब as I said, जैसे आप 30 साल के हो और आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे हो, then you can't expect the world to be like, अरे कोई नहीं भाई बेटा, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत रो, मत परेशान हो. आई थिंक परेशान होने वाली बात है. आप 30 साल के, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हुए, what are you doing with your life? You need to get your You- act together. You're gonna get your and- shit together. Yeah, But yeah. at the same time आप साल के 20 लाख 30 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके बाद भी आप बोल रहे हो मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे को 50 कमाने हैं, मेरे को 1 करोड़ कमाने हैं. फिर वो भी एक अनरियलिस्टिक प्रेशर चला गया है. Right. अगर आपने कुछ एक हद तक यू डिसेंट, आई थिंक दैट्स इनफ. उसके बाद वो बस ग्रीड होता है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो देन यू जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ अवे. You know, you talk about this idea of comparison. And Yeah. मेरे दिमाग में, this was the conversation we'd had a little bit last time, and I want to pick it up again, is these dating apps, यस. right? हम हाँ. dating apps में घुस गए हैं जहाँ पे we're putting men, we're putting women बिल्कुल. in a very unequal space. और फिर हम वहाँ पे भी compare कर रहे हैं, right? Like, as a man, अच्छा कौन सी लड़की ठीक है, क्या है? We are getting pushed into this. Yeah. So, you know, how do you really create a space? And we've made these relationships also into a scoring game. Ki, I'm a 10, how do I get myself a 10? Yeah. Right? I'm a 7, how do I get myself a 7? Right. And we've sort of become numbers or digits or report cards versus actually people as a whole. बिल्कुल. So I'll start off by saying कि यार dating apps एक तो ना लड़कों के लिए नहीं बनी है बिल्कुल भी. Okay. Because the amount of rejection that you face on dating apps जो लड़कों को आता है वो और कहीं पे नहीं आता है. आपको इतनी बारी स्वाइप राइट करना पड़ता है, 100-200 बार, तब जाके एक मैच आता है आपको. वहीं पे अगर एक लड़की अपना डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाती है, तभी के तभी 1500 मैचेस आ जाते हैं 1 घंटे में. और हमने पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा था. एक लड़की की नॉर्मल सेल्फी डाल दी थी, एक दिन में 1500 मैचेस आ रहे हैं, और वहीं दूसरे लड़के का डाला था, उसके टोटल 10 या 12 मैचेस आ रहे हैं. और वहाँ पे भी डेट सेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो बट इसमें द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि डेटिंग ऐप लड़कों के लिए बनी नहीं है, बट डेटिंग हमेशा से ही लड़कों के लिए कंपेटिटिव रही है. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इट हैज़ बिन ईजियर. बट डेटिंग ऐप्स हैव मेड इट मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे आप ना तो किसी से बात कर सकते हो, ना कुछ अप्रोच कर सकते हो. आप एक एल्गोरिथम के ऊपर बैठे हुए हो, और वो एल्गोरिथम वाले लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे स्टक रहो, कि आप बार बार उनका प्रीमियम लेते रहो, आप बूस्ट लेते रहो. और अगर कभी मैच आता है तब बात हो रही है, और फिर अगर आपकी बात होती है किसी से, आप मिलने जाते हो, तो अब स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे. I mean, it's so very simply. I mean, if I had to ask Kshitij,
should you use dating apps? Yes, no? ऑफ कोर्स, बट थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. आई डोंट थिंक आपकी डेटिंग स्ट्रैटेजी में डेटिंग ऐप शुड बी दी ओनली थिंग. So it shouldn't be your only. या Interesting. And between the dating apps, are some better than others? इट डिपेंड्स आपका गोल क्या है. तो अगर आपका गोल है बस लाइक अगर आप अपने अर्ली 20s में हो और आपका गोल है टू फाइंड अ गर्लफ्रेंड, देन हिंज वुड वर्क वेरी वेल, राइट. अगर आप थोड़े से ओल्डर हो तब भी हिंज कुड वर्क, बट देन पीपल आर ऑल्सो मूविंग इन टू अदर डेटिंग ऐप जो थोड़े सीरियस हैं. लाइक देयर आयल, देयर इज बम्बल है. बम्बल पे अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेट एंड देव गॉटन मैरिड. आई मेट माई वाइफ ऑन बम्बल. Really? So yeah, so I know a lot And of friends. and it's supposed to be very women first, right? Bumble. I mean वो मार्केटिंग है बस. बिकॉज विमेन फर्स्ट का क्या है, वहाँ पे आपका मैच होता है, द गर्ल विल मैसेज यू. बट लड़कियाँ कोई एफर्ट डालती नहीं है, आज तक कभी डाला नहीं है. उनका बस मैसेज आता है हे, हाय, हेलो, या फिर इमोजी भेज दिया, एक स्माइल भेज देते हैं बस. तो एफर्ट आपको ही डालना है. और अगर आप हाय बोलते हो तो देर लगेगा, अरे मैं तो बोर हो गई हूँ. एंड मेरे को पर्सनली उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक लड़की को 1000 मैचेस आ रहे हैं. वो So then you have to kind of. डिमांड सप्लाई का गेम है. इफ शी हैज सो मेनी मैन आफ्टर हर, शी इज ओनली गोइंग टू चूज. एंड लड़कों को मेहनत करनी पड़ेगी. एंड दैट इज व्हाई इफ यू टॉक अबाउट रोमांस, लड़के हमेशा लड़कियों से ज्यादा रोमांटिक हैं, क्योंकि वी आर द वंस जिनको लड़कियों के पास जाके बार बार रिजेक्ट होना पड़ता है, बार बार दिल तोड़वाना पड़ता है, बार बार परेशान होना पड़ता है, और उसके बाद भी फिर लड़के हिम्मत करते हैं कि यार चलो फिर से ट्राई कर ही लेते हैं. एंड गर्ल्स आर जस्ट देयर, देव गॉट अ लाइन ऑफ मेन. एक आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा जाएगा. So if I had to put this, you're saying that dating apps should be a part of your dating strategy, यस, but not your entire strategy Correct. per se. हाँ, मेरे हिसाब से तो आप बस चीज़ें यूज़ करो अपने बेनिफिट के लिए. अगर डेटिंग एप्स आपको मिल रही हैं, आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो. यू लर्न द गेम, यू अंडरस्टैंड क्या एल्गोरिथम है, और अपने हिसाब से खेलो. डोंट बी अ फकिंग स्लेव देयर. And I'll give the other, like we spoke about women and lots of, I mean the women I speak to who are Yeah. on these apps, I mean उनके भी अपने रोने हैं, right? Yeah, And, yeah. because they feel that they don't get people who are serious and they Yeah. might be looking for relationship and आपको relationship वहाँ पे नहीं मिल रही है. So I guess what I'm questioning is just this idea of this place Yeah, जहाँ पे intention situation mismatch है. yeah, But कहीं ना कहीं the algorithm and the app behind it is making money, yeah. with maybe a small percentage of people who are actually finding love and Yeah. relationships out of this. Yeah, and actually इस साल dating apps are on a decline. तो डेटिंग एप्स का फाइनली डिक्लाइन आ रहा है, बिकॉज पीपल आर मूविंग टू रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस, देयर मूविंग ऑफलाइन, देयर मूविंग टू थिंग्स लाइक मैच मेकिंग, देयर मूविंग टू थिंग्स लाइक रन क्लब्स, क्योंकि वो रियलिटी में मिलना चाहते हैं. क्योंकि वहाँ पे द प्रॉब्लम दैट यू सेइंग वुमेन आर फेसिंग, क्योंकि 1000 मैचेस आ रहे हैं, आप कैसे चूज करो How इंटेंशन? do you know? How do you know? How do you know intent क्या है? You How don't do you know. know शक्ल क्या है? How do you know उसके पीछे क्या है? Yeah, Like a lot of this can be engineered, right? Correct. How do you really feel कि the point is when you meet someone face to face, आपको तभी पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है. of course. और वहाँ पे भी like women need to learn to understand what type of a guy is a red flag, कौन serious है कौन नहीं है. One very simple way to do it is ask him what he's looking for. अगर लड़का बोल रहा है कि आई एम नॉट श्योर, या फिर बोल रहा है देखते हैं कहाँ जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर अ कनेक्शन, आई एम बिजी इन माई करियर, विच ऑल फक बॉय लाइन्स दैट वी यूज एंड आई हैव यूज्ड इन माई पास्ट, नथिंग इज एवर गोना हैपन. इफ यू लुकिंग टू गेट मैरिड, फाइंड अ गाय जो बोल रहा है आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म. वो क्लियर रखो, क्योंकि बिना बात एक किसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना, आप 3 साल डेट करोगे और एंड में वो बोलेगा मेरा तो मन नहीं है. So I think this idea of being yourself, having your own boundaries, and maybe I think सबसे before we jump into this dating world, अगर हम एक थोड़ा reflection लेके अपना understanding कर ले that what is it that we want. बट वो भी ना दिव्या, आई फील एंड दिस इज फ्रॉम माई जर्नी, आई फील हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या. हमें ही नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि आपके बाउंड्रीज चेंज होते हैं. जैसे यू वर सेइंग कि आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन मिलता है, आप उधर बाउंड्री चेंज करते हो. सो एट द सेम टाइम माई वर्क विद मैन, जो मैं लड़कों को सिखाता हूँ कि भाई पहले आप जान तो लो कि आपको क्या चाहिए, पहले आप जान तो लो कि आप हो कौन. सो लोग बोलते हैं भाई मैं तो ऐसे ही हूँ बचपन से, मैं तो शर्माता हूँ, मैं तो शाय हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ. एब्सोल्यूट फकिंग बुलशिट, सब बकवास है. आप ना तो शाय हो ना इंट्रोवर्ट हो. आपके जो हैबिट्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो आपकी अपब्रिंगिंग रही है, जो आप एनवायरनमेंट में रहे हो, जो आपके ट्रॉमाज हैं, आपकी बुलिंग हुई है, आपको जो कंडीशनिंग दी है मूवीज़ ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने, उस सब के अमेलगमेशन पे आप आज बने हुए हो.
तो आप अगर बोल रहे हो मैं शाय हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या मैं इस टाइप का लड़का हूँ, भाई आप कुछ नहीं हो, आप फ्लेक्सिबल हो। क्योंकि अगर आप शाय होते तो आप अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ हंसी खुशी करके क्यों ओपन अप हो जाते हो? और अगर आप एक्सट्रोवर्ट ही होते तो फिर आप कहीं पे फ्यूनरल में जाके शांत क्यों बैठते हो? क्योंकि यू आर नॉट जस्ट वन पर्सन। तो अपने आप को एक बॉक्स में डालना हमें बंद करना पड़ेगा एंड हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमारी बहुत सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी सिचुएशन में जाके बात करने के लिए, राइट? सो एक बार वो चीज समझ आती है, देन हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मेरे को कुछ चीज करनी है, विच इज मैंने आज तक कभी किसी से बात करी नहीं है, मेरे दोस्त थे, मैं बहुत खुश था, बट अब मेरा कॉलेज खत्म हो गया तो अब मेरे को बहुत अकेलापन है। आई वॉन्ट समवन, बट मेरे को हिचक है, मैं हिचकिचाता हूं लोगों से बात करने में, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। तो आपको वो रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। आप 10-20 बार रिजेक्ट हो गए, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। आप जो शाय फील कर रहे हो, आप थोड़े टाइम बाद वो शाय फील करना बंद कर दोगे। तो आप पहले खुद को तो डिस्कवर करो कि आपकी पोटेंशियल क्या है। हम अपनी पोटेंशियल से इतना नीचे खेल रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूं तो ऐसे मिलेगा और फिर मैं एवरेज ही रहूंगा जिंदगी भर। माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज विद दैट थिंग। एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है जस्ट फ्रॉम व्हाट यू वर सेइंग एंड आई वांट यू टू गेट इनटू इट इज हाई वैल्यू मैन, राइट, right? या, Right? What are the top 3 qualities of a high value man? And one of course has been this idea of ambition. या एम्बिशन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। बिकॉज अगर आपका कॉन्फिडेंस रहता है तो बहुत चीज़ें अगर लाइफ में नहीं भी हो रही है ना, जस्ट बिकॉज यूर कॉन्फिडेंट वो चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं आपके लिए। सो कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट यू कैन जस्ट हैव। I'll touch a bit upon confidence, right? अभी जैसे शुरू में you asked me कि आप बस affirmations करो, आप confident feel हो जाओगे। Partly, maybe not, but वो भी enough नहीं है। So 2 लेवल का confidence होता है। एक होता है surface level confidence that you can build, जो actually चीज़ें करके आता है। So अगर let's say for example मैं क्रिकेट में बहुत confident हूँ, but आज तक मैं किसी क्रिकेट पिच पे गया नहीं हूँ, तो confidence useless है। सो बट अगर मैंने 20 साल दिए हैं, रोज प्रैक्टिस पे गया हूँ, एंड नाउ आई नो हर एक बॉल कैसी आ रही है, क्या होने वाला है, तो वो कॉन्फिडेंस जो आता है मेरे पास, बिकॉज आई हैव वन मैचेस, आई हैव डन थिंग्स इन लाइफ, दैट इज रियल कॉन्फिडेंस दैट आई एम गेटिंग, क्योंकि रेफरेंस एक्सपीरियंसेस वहाँ पे बिल्ड हुए हैं। बट एक और कॉन्फिडेंस है जो असली में एकदम कोर कॉन्फिडेंस के ऊपर जाता है, विच इज वंस यू डू दीज थिंग्स, अब आपको कुछ नई चीज़ करनी है। नाउ लेट्स से आई एम a content creator 10 साल से, and I've done content. अब कल को मेरे को मूवी स्टार या एक्टिंग का शौक चढ़ेगा कि मेरे को एक्टर बनना है। सो नाउ I might not be confident कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट इन द एबिलिटी कि अगर मैं किसी चीज़ पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ या किसी को करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 100% उसको फिगर आउट कर दूंगा। तो अगर मैं एक बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, 3 बार, 100 बार फेल होऊंगा, आई कैन गेट अप अगेन एंड आई कैन स्टिल मास्टर इट। रिजिलियंस, करेक्ट। सो दैट कॉन्फिडेंस होना कि भाई मैं गिरने वाला हूँ, मेरी पहली वीडियो बेकार होने वाली है, मेरे को एक्टिंग नहीं आने वाली है, मैं एम्बैरस होने वाला हूँ, मैं किसी भी नई चीज़ में जा रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट मुझे पता है 100 ट्राइज के बाद मैं उसको कर दूंगा। You're not afraid of failing anymore. इट्स नॉट even फेलियर, क्योंकि आपको ने रियलाइज करा है कि दैट्स लर्निंग। जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो, जैसे आप साइकिल चलाना सीखे हो बचपन में, कौन पहले दिन साइकिल चलानी सीख जाता है, कौन पहले दिन स्विमिंग करनी सीख जाता है? दैट इज द पाथ ऑफ द, मतलब वैसे ही तो आप चीज़ें सीखते हो। आप गिरोगे 2 बार, 3 बार, 10 बार, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है इतना? लाइक if you're an adult, why the fuck do you care about people? You have to keep trying again Yeah, and who again. cares about people? When I had started out, डेटिंग ऐसा नीच था, 10 साल पहले पॉसिबल ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है, एंड एक्सेप्टेंस भी अब ना इसीलिए आई है क्योंकि लोगों ने देख लिया मेरे फॉलोअर्स हैं। इट्स ऑल फेयर वेदर पीपल, क्योंकि सोशल प्रूफ वहाँ पे है। बट व्हेन आई स्टार्टेड आउट, लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि ये क्या वियर्ड चीज़ है। माई पेरेंट्स वर लाइक दैट, बिकॉज मैं पूरी जिंदगी 90% रहा हूँ, PCM विद कंप्यूटर साइंस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, स्टडीड इन अ बोर्डिंग स्कूल, एवरीथिंग perfect. And he's like, what are you doing What the teaching fuck are you people doing? dating? Yeah. And everyone around was like कि ये क्या कर रहा है, अजीब है, weird है, embarrassing है. But it never registered. I was so clear कि यार मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके लिए, मुझे पता है मैंने क्या पेन झेला है अपनी लाइफ में, और मुझे पता है मैं क्या वैल्यू आगे की कमिंग जनरेशन को दे सकता हूँ। क्योंकि बहुत लड़के हैं जो बहुत पैसा कमाएंगे बट वो एंड में लोनली होने वाले हैं, क्योंकि पैसा वो खुशी नहीं देने वाला है आपको। इट विल गिव यू द रिसोर्सेज टू देन इन्वेस्ट इन समथिंग जिससे आपको खुशी मिल जाए। बट रिलेशनशिप पे तो फिर भी काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस तो बनाना पड़ेगा, सोशल स्किल्स तो डेवलप करनी ही पड़ेंगी। सो वेरी क्लियर। और अब जितना जितना होता जा रहा है, अब लोग बोल रहे हैं हाँ हमें तो पहले से पता था दिस विल हैपन, एंड आई एम लाइक हाँ ऑफ कोर्स। I know you were talking about it. Yeah. You know, again, 2 questions from here, but the first one is it okay for men to cry, right? Because ultimately, you know, and लड़के नहीं रोते हैं, लड़के रोते हैं, लड़के तो नहीं रोते हैं. Is it okay for a man to cry? Depends how much and depends situation क्या है।
as I said, अगर ऐसा होता है कि and this is propaganda, पता है कि भाई प्लीज रो लो लड़कियों के सामने, which is from a lot of therapists, a lot of people जो बोल रहे हैं हाँ ये कर लो ऐसे. And then it reminds me of that same Friends episode जहाँ पे एक बार रेचल meets this one guy जो रोता नहीं है और वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो वो रोज रोता रहता है. And eventually she's like, it's like मेरे को एक बच्चे को ख्याल रखना पड़ रहा है. So all women say कि men need to cry and ये अच्छा है, but once a man starts to cry वो वहाँ पे turn off हो जाते हैं. But why is that? I mean, and why is it the man's prerogative to create the fun environment? Like, why should that not be the woman's? Because women control sex. So, It's demand supply. Women have, लड़कियों के पास हजारों लड़के हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, लड़कों के पास उतनी चॉइस नहीं है. okay. So that's why अगर आप नहीं करोगे कोई और लड़का करेगा. आप एफर्ट डालोगे नहीं, आप लेजी रहोगे. At the same time, if you want the best, most highest quality partner, so you need to put in the effort. Women have always been choosers and men have always been the ones जिन्होंने effort डाला है, just because that's how economics works. Demand and supply. Unless you are Shah Rukh Khan yourself. Which is वहाँ पे you relax, you chill. what is the difference between healthy and toxic masculinity? Firstly, we'll start off by saying कि masculinity को toxic ना ही बोलें तो वो prerogative वो better है, because there's masculinity and then there is people that are not masculine. तो जो चीज़ हम toxicity से relate करते हैं उसको masculinity में बोल ही नहीं सकते हैं. So like अगर कोई if someone is being physically violent with their partner, domestic violence हो रहा है या हर एक चीज़ पे गुस्सा आ रहा है या आप अपने emotions में control नहीं हो, so then you're a child. You're not a man. तो masculinity हम बोलेंगे ही नहीं. That's just childish behavior. That's stupidity. That's just violence. Healthy masculinity is being a protector. Is being a provider. It's understanding your own emotions. It's being there अपने close friends के लिए, अपने close circle के लिए, अपनी wife के लिए, अपनी family के लिए. It's about being that guy जिसके ऊपर लोग rely कर सकते हैं. It's about being consistent. So we had some fun questions, right? And these were for dates. It's a red flag, green flag, Okay. right? Wants horoscopes matched before agreeing to the first phone call. I think it's a red flag. Red flag. Yeah. But ठीक है, time limited है, इतने सारे options हैं. Horoscope. मतलब time match कर लो तो कुछ ना कुछ. It tells me a lot about the person's IQ. Which is? अगर आपको लगता है कि हॉरोस्कोप्स के ऊपर आपकी कंपैटिबिलिटी है, ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी इज अ सूडो साइंस. बहुत कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स प्रूव करने के लिए वो साइंस है, वो साइंस नहीं है. तो अगर आप वो चीज़ें बिलीव कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए, पता नहीं. So red flag for you. रेड फ्लैग, आई मीन You know, AstroTalk is one of the largest growing businesses today, right? yeah, fucking stupid as business. 1350 crores का revenue कर क्योंकि रहा है. दिलासा मिल रहा है ना लोगों को क्योंकि कि उनको- जब आप पैदा हुए हो तब सूरज जहाँ पे था, चांद जहाँ पे था, उसकी वजह से आपकी लाइफ फर्क पड़ रही है, तो आप प्लीज विक्टिमाइज हो जाओ ना. आज हम प्लैनेट्स को ब्लेम कर रहे हैं. Easy. Today's day of victimization, we're going to blame planets. Planets. Today's asks for your Instagram on the first date. On the first date? But how did the date happen अगर Instagram में नहीं था उसके बाद? और जगह भी होते हैं, मम्मी पापा मिला सकते हैं, फ्रेंड से मिलाया होता I है. think green flag. अब डेट के बाद Instagram नहीं Yeah, लेंगे तो कब yeah, लेंगे? that's कैसे मिलेंगे? offers to split every bill 50-50 always. The girl offers. This is from both Let's sides. assume the girl offers to split Yeah, 50-50 and let's all do the it time. both. Let's ठीक है. yeah, let's do it. So if the girl is offering to split the bill, every bill 50-50 all the time. The green flag. And if the boy wants to split the bill 50-50 always. उसको भी दो में डिवाइड करते हैं. If he's in college, you can't expect him to pay all the time. Please contribute. But if he's like 30-35 years old, just pick up the fucking check. 2-3 हज़ार रुपए का होने वाला है भाई. इतने तो पैसे कमा लो कम से कम. So you don't think it's a red flag if the man is not paying all the time? Depends on the age. 30-35 years all the time तो कहाँ ही होता है. Like Because I mean, a lot of like we're just saying, right? इतना सारा option है लड़कियों के पास, तो शायद there is that expectation कि लड़के हमेशा टैप पिकअप So करेंगे. how I would say it is, पहली बात उसको वहाँ पे डिवाइड करते हैं. थोड़ा nuance है यहाँ पे. One, अगर आप दोनों कॉलेज में हो
तो वहां पे यू एक्सपेक्ट द गाय टू पे जो पढ़ाई कर रहा है, दैट इज स्टूपिड, राइट? आप भी पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पढ़ाई कर रहा है, बी मोर कंसिडरेट इफ यू रियली लाइक द गाय, एंड आप स्प्लिट कर लो, या फिर आप ऐसी जगह जाओ जहां पे चीजें सॉर्ट हो जाए. व्हाट आई वुड डू इन कॉलेज इज आई वुड नॉट ईट एनीथिंग ऑन द डेट. मैं घर से खाना खा के जाता था, एंड आईड बी लाइक कि मैं तो डाइट पे हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ. सो गर्ल्स वुड ऑलवेज पे. All of the girls that I have met in my entire life have always fought with me to pay the entire bill. Not even 50-50. That is my reality. But baat ye bhi hai, the same girls will go on dates with other guys and will not pay at all. Okay. It also depends on the type of guy you are. Right? So wo. Now when you're 30 years old, now once I started earning and everything, I'm not letting the girl pay. So wahan pe agar main bol raha hu nahi, let's split it, it's a red flag. So it is a red flag if It the is a boy red flag. is wanting to split हाँ. at 50-50 after a हाँ, certain. शुरू में, बट लेट्स से 3 डेट हो गई हैं, एंड द गर्ल इज लाइक कि I'll टेक दिस वन, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स आल्सो नाइस. That's okay. But that expectation ki the boy should pay is real and there. Yeah, me as a man, I like a man should want to pay. You're going on a date with a girl who's going to be your wife. अगर आप प्रोटेक्टर प्रोवाइडर वाली बात में सही में बिलीव करते हो, तो Then have the ability थोड़े to. पैसे कमाओ, दे दो ना भाई, 2-3 हज़ार रुपए, क्या परेशान होना है. Okay, that's a very interesting one. Wants to see your phone. कितने Once. टाइम? Early on, just to be transparent, and offers their phone to you also. रेड फ्लैग शोज इनसिक्योरिटी, काफी इनसिक्योरिटी. अगर आप डेट कर रहे हो, इट्स ऑफिशियल, देन यू वांट टू शो फोन्स एंड एवरीथिंग, शी इज आस्किंग, कूल. बट शुरू में ही है जहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. But really, if you're dating, if you are dating someone, and then they want to see your phone, what do you think of that? आई मीन एक टाइम बाद तो फिर वो बात हो जाती है, अगर मैं मना कर रहा हूँ तो व्हाट इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू हाइड. और अगर मैं मांग रही हूँ तो फिर मैं क्यों क्यों मांग रही हूँ? क्यों मांग रही हूँ? एग्जैक्टली, वो दोनों ही हैं. बट एक टाइम के बाद एक वो कंफर्ट, तो देयर हैज टू बी अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे वो लेवल ऑफ कंफर्ट आना है कि आप दोनों को एक दूसरे के फोन के पासवर्ड पता है और आप एक दूसरे की चीजें देख रहे हो. दैट इज maybe after you're married, or Yeah, but enough dates have happened. that's what I'm asking. Like, one is that ठीक है, I know my password, I know my husband's password, we know each other, and वो comfort है. The other thing is कि मुझे password चाहिए ताकि मैं देखूं और आप देखो. So I'm वो questioning. problem है. No, I'm questioning this curiosity or this need. Like, Yeah. is that itself a red flag in any relationship? Not really. I think it's being a little bit practical also. You never know what's going on. But then, I mean, shouldn't you? कहीं ना कहीं वो एक innate trust नहीं होना चाहिए that without seeing you should be okay. I think trust has to be earned. ना कि वो पहले ही होना चाहिए. I've checked phones. Whenever I've checked phones, I've found things. Interesting. And I haven't checked phones as randomly. Right. I've seen something off, and then I've Right. checked phones, and I've found things. A lot of my friends have checked phones. जब उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, and they found things. So we can talk about trust and everything, but I think it's worse अगर आप trust के नाम पे you're being cheated on. I found it a So- number of times, and I have a lot of friends also who found it a number of times. So it's okay. Depends when, what's going on. अगर मैं paranoid हूँ पूरे टाइम फोन ही चेक कर रहा हूँ, that's weird. But जैसे मैंने red flag देखा, मैंने देखा this girl's acting a little bit weird. Like what the fuck, she didn't answer my phone 2 दिन पहले, बहाने मार रही है. Oh, मैं तो सो गई थी जल्दी. I was like, cool, fine, let's see. And then वो नहीं सोई थी. And me being a dating coach, I've seen enough. There are enough girls who lie and who go on dates and they're doing things that the partner never knows about. बहुत होता है. And you are, I think checking is what you do to safeguard yourself. If you're getting married, एक बार फोन चेक कर ही लो यार. Interesting. अगर आप कमिट कर रहे हो ऑन पेपर कि मेरी आधी जायदाद मैं इस पर्सन को देने वाला हूँ और अपनी पूरी जिंदगी साथ में रहूंगा और मैं अपना टैग फ्रॉम अ बैचलर टू अ डिवोर्सी के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, थोड़ा दिमाग लगा लो. Fair. So I think it's a fair ask. It's a fair ask. It's a fair ask for the trust that you. Yeah. I don't think you should ask. If you really want to check a phone, आपने पूछ लिया तो तब तक तो सब डिलीट हो जाएगा ना. Yeah. It has to be a surprise. Yeah. And person it's should fine. know. And if someone does, it should be okay to Don't tell. offer. मतलब तो I don't know. I think at times you've got to be sneaky. I don't think ये दुनिया में सब इतने प्योर हैं. And I don't think सबको प्योर होना है.
I personally would be sneaky around it. अगर if I tell my partner, let's say मैं डेट कर रहा हूँ, मैं अरेंज मैरिज सेटअप से मिला हूँ, मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं मेरे को अरेंज मैरिज सेटअप में, मैं अरेंज मैरिज सेटअप से किसी से मिला हूँ, आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, आपको फोन चेक करना चाहिए. आपने 2-3 महीना वो डिले करा एंड शी इज लाइक, यू डोंट इवन ट्रस्ट मी. आई लाइक, फकिंग श्योर आई डोंट. व्हाई द फक, व्हाट हैव यू डन टू अर्न माय ट्रस्ट? I would not even ask for the phone. I would check the phone. If I don't find anything, I will not tell I've checked something, and that is when I will start to trust you. You Interesting. prove me your trust, no? Not like कि बस But you're not asking. You're not I'm really. not asking. क्योंकि मैंने पूछ लिया तो डिलीट हो जाएगा ना सब कुछ. अब चोर से थोड़ा ना पूछोगे तेरे को अरेस्ट करने आ रहे हैं, वो थोड़ा ना मिलेगा आपको घर पे. I guess the question was more about, is it like the ability to ask someone also, right? कि वो कोई टाइम बोल पे रहा है. डिपेंड करता है. 6 महीने 12 महीने हो गए, आपकी शादी भी हो चुकी है और फिर the person is always trying to hide. अगर आपको फोन चेक करना है, ठीक है, मतलब कर लो यार, Okay. ले लो मेरा फोन. This is a very nice one. Asks you to unfollow an ex on Instagram before the wedding. Yeah, green flag. It's okay. Yeah. Yeah. Tells their parents about a fight you had because we don't hide things in our family. Red flag. Yeah, fights need to be. Yeah. Your It's between you and your partner. आपके पेरेंट्स कहाँ से आ गए? तो पेरेंट्स से थोड़ा ना शादी कर रहा हूँ मैं तो आपसे शादी कर रहा हूँ. तो अब आपके पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हो? मतलब फिर कल को अगर कुछ और प्रॉब्लम होगी, पेरेंट्स विल हैव अ से. And I don't want that at all. I don't want them to have a say. Wants to keep a relationship off social media completely, even after months. Yeah, red flag. Red flag. Yeah. Okay. You're getting cheated on. 100%. There are people out there जो they've taken relationship advice from Instagram Reels. मतलब But ये बस standard नहीं है, लेकिन I think Instagram automatically pick कर लेता है क्या हो रहा है, and it starts like या giving सो you. एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपको जो बिलीव करना चाहते हो वही आपको आपके पास आएगा ना. तो अगर आप बिलीव करते हो कि लड़कियां बुरी हैं या लड़के बुरे होते हैं, आपको वही टॉक्सिक कंटेंट ही आता रहेगा. वही पूरे time. दिखाते रहेंगे, वही वही दिखाते दिखाते रहेंगे, वही फिर दिखाते रहेंगे. कॉन्फर्मेशन बायस होता रहेगा, आप बोलते रहोगे बिल्कुल सही है, मैं तो एकदम सही था. सेम थिंग गोस फॉर एआई आल्सो. They've already imagined your wedding after the third date. डिपेंड्स द कॉन्टेक्स्ट. आप अरेंज मैरिज में मिल रहे हो तो It's क्लियर okay. होना चाहिए. बट अगर आप कॉलेज में आप बस डेट कर रहे हो, क्या सीन है? Cancels plans because of urgent work. Depends how many times. एक दो बार तो हो ही जाते हैं यार प्लान कैंसिल, एंड द अदर पर्सन नीड्स टू बी अंडरस्टैंडिंग. बट हर बार प्लान कैंसिल हो रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. And also, I Bad feel plan. like, also the feel of like, and this is more personal, कि if you are cancelling a plan, Mhm. I think urgent work is not a good enough excuse, right? आप बता दो क्या हो रहा है, Hmm. details बता दो, Yeah. you know, Yeah, true. like You can make it concrete. You can You tell can कि make ये it- प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को प्लान कैंसिल करना ये पड़ेगा. मेरे को करने Communicate. हैं, ये वो करने I हैं. agree. Wants a joint Instagram account to make things official. Yeah, I don't know. Could be a green flag, could be a red flag. Girls want different things यार, पता नहीं. अच्छा, really? It's very icky for me. But things change, right? Gen Z, Gen Alpha. Yeah, it's just very icky for me. पता नहीं. Maybe my wife would want it someday and I'll be like, baby, please don't do this. If you love me, then you please do it. If not, Yeah. then I don't know, but I can't judge a red flag or a green flag. We're married now. If she wants to do something, अब- वो ये ना, मेरे को कितना फर्क पड़ रहा है. अगर मेरी ऑनलाइन इमेज ऐसी है, मैं टफ बॉय हूँ और वहाँ पे she's posting all these fucking cute like cute cutie, things. cutie, cutie, heart know? things, the poem that you और wrote. मेरे faces down जा रहे हो, Yeah. I'm like, baby, please fucking It's like, stop I it. wanted to be this alpha male और तुमने Yeah. poem डाल दी जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी. Yeah, like, fucking hell. So वो impact है, but मतलब ठीक है. Girls want different things, and you do वही है ना memes. मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए क्या नहीं करता है. yeah, you do you, I do me, and then Yeah. when I'm with you, I'll do whatever you say. Yeah, my wife keeps posting all of her couple reels and everything, and उस पे हमेशा ज़्यादा views आते हैं than her own reels. So people like seeing me. I love Thanks. it. So I'm like, ठीक है, go for it. Okay, so just one word and a last question for you. Sorry, your one-liner on these. Hmm. Cold approach. Golden, I think it's the best. Cold approach is a superpower. इस डे एंड एज में जहाँ डेटिंग एप्स ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, कोल्ड अप्रोच इज द थिंग दैट विल बिल्ड कैरेक्टर आपका, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और जो ये सारी बुलशिट के दूर चला जाता है. यू कैन गो टॉक टू अ गर्ल यू लाइक, आंखों में देख के बात कर सकते हो, वहीं क्लियर हो जाएगा. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ. You are not going to be harassed. आपको police, मतलब, you know, today. Take some preventions. Don't be stupid. Don't If be she like- says I'm not interested, leave. अगर आप कुछ बात
don't talk about stupid things. Don't say things like आप hot लग रहे हो, आप sexy लग रहे हो. थोड़ी सी चीज़ें सीख लो, मेरी थोड़ी वीडियोस देख लो, in depth YouTube पे सब कुछ फ्री में डाला हुआ है. अच्छे से देख के करो, लोकेशंस देख लो, कहाँ पे कर रहे हो, किस टाइप के लोगों से बात कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से be polite, be like a normal guy. Sigma male. अगेन एक लेबल है. अगर आपको वो हेल्प कर रहा है लाइफ में आगे ले जाने के लिए, डेफिनेटली यूज इट, लर्न द गेम एंड प्ले इट वेल. बट एक वो चीज़ देखो, अगर वो आपको कब तक सपोर्ट कर रहा है. कई बार सिग्मा मेल्स वही और हम एक्सिंग में, मैं कभी हंसने नहीं वाला हूँ, उस वाले में चीज़ में चले जाते हैं. इफ दैट्स हेल्पिंग यू, फाइन, गो फॉर इट. बट इवेंचुअली एट अ पॉइंट इन टाइम आपकी रिलेशनशिप्स में आपको इमोशंस फील करने पड़ेंगे, थोड़ा हंसना वसना पड़ेगा, और आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है. वहाँ पे कितना ही सिग्मा बनने की कोशिश करोगे, बी यू, लाइक फक बीइंग अ सिग्मा मेल. Manosphere. There are good things, there are bad things about it. Positives, negatives जैसे हर एक चीज़ में रहते हैं. Take only the positives of it, not just the negatives. If it's making you into a woman hater, if it's, अगर वो ऐसी बातें आप सीख रहे हो वहाँ से कि सारी लड़कियाँ बुरी होती हैं एंड कोई पार्टनर आपको कभी मिलने नहीं वाला है, या फिर she'll cheat on you all the time, वो सही नहीं है. या फिर अगर ये बिलीव्स हैं कि women are the inferior gender, I think that's stupid. बट वहाँ पे अगर आपको वो बोल रहे हैं आप पैसा कमाओ, आप अच्छे दिखो, आप अपनी बॉडी बनाओ, आप अपने पेरेंट्स और फैमिली के लिए टाइम निकालो, आप चीज़ें करो, आप मेहनत करो. I think every man in his 20s and 30s needs to have that time where you shut the fuck up and you do something out of your life. You transition from that boy to a man. And that's manosphere for you. So it has both. Choose one part, don't choose everything else. एक हेलो इफेक्ट होता है वहाँ पे, गॉड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कि अगर जैसे मैनोस्फीयर में बोलते हैं कि आप बॉडी बनाओ, आप पैसे कमाओ, ये सारी चीज़ें, दीज आर गुड थिंग्स. बट जब आप कुछ चीज़ें किसी की मानने लग जाते हो ना, तो आपको लगता है वो बाकी चीज़ें भी बोल रहे हैं वो भी सही है. विच कुड बी women are stupid, hate women, बदतमीजी से बात करो, call her a bitch, you know, those kind of things. You don't have to take that. So only pick out the good things from something, not the bad. Use your mind to. Use your mind, yeah. Astha. She's the love of my life, my best friend. Yeah. Shadi.com. Yeah, I don't know, arranged marriage, again, not a big fan, but I'm always in two things. मतलब मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज लड़कों को स्पॉइल करती है, क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव बचता नहीं है अपनी ये स्किल्स के ऊपर काम करने का, और उनको बचपन से ये सपना दिया जाता है कि आप बस पैसे कमा लो, आपके लिए वहाँ कोई और लड़की है, आपको मिल ही जाएगी, आप एंटाइटल्ड हो. तो वो अपनी फ्लर्टिंग, अपनी बात करना, कम्युनिकेट करना, और इट्स नॉट जस्ट गेटिंग मैरिड. शादी निभाओगे कैसे अगर आप कभी आपने किसी को डेट करा नहीं है कभी भी. तो वो स्किल्स लर्न करना कि एक रिलेशनशिप में होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इमोशंस कैसे होते हैं, आप अप्स एंड डाउन्स में कैसे सॉल्व करते हो, आप या फिर अपनी फाइट्स कैसे रिजॉल्व करते हो, वो सारी चीज़ें सीखना भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर वो सारी चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, आपने वो सब कुछ कर लिया है, बट अब आपको शादी करनी है एंड देन आप Shaadi.com के लिए जा रहे हो, तो मे बी आई कैन बी फाइन अबाउट इट. क्योंकि इस देश में, क्योंकि Shaadi.com जैसी चीज़ें हैं, अरेंज मैरिज है, इज़ वाई पीपल आर गेटिंग मैरिड. यू नो दिस इंसेल कल्चर वगैरह जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं है. सो इफ़ यू डोंट हैव अ पार्टनर, और आपको कोई भी, यू आर नॉट गेटिंग अ फीमेल, देन यू बिकम वेरी बिटर टुवर्ड्स लाइफ. And that's why so many school shootings are there. Incel culture इतना ज़्यादा हो गया है. People are going crazy. They're shooting each other up. वो खुद suicide कर रहे हैं, खुद drug addicts बने हुए हैं. So a presence of a woman in a man's life is healing. So of course Shaadi.com वगैरह help कर रही है. But if we want to be great, Shaadi.com and arranged marriage should be a backup and not the only thing that you're working on. I think Yeah. what you're trying to say is that it's good to help connect people, but ultimately your own ability to connect with another human being and build a relationship Yeah. is what's important. So Kshitij, one last question for you, that if you had to wake up tomorrow and आप realize करो कि मेरा YouTube नहीं है, Instagram नहीं है, मेरे पास इतने सालों की कोचिंग नहीं है, I don't have this years of content, I'm not a content developer who's been doing this for the past 10 years, तो कल उठ के आप क्या करोगे? I will post my first YouTube video tomorrow. Yeah. I think YouTube is an amazing platform. You can always start with short form, but YouTube has given me so much. जो short form content से बहुत ही ज़्यादा है. It's been 10 years now, and I'm pretty confident we can build it up again. You So will दोबारा start. build कर You will लेंगे. start, and what will you talk about this? Dating, same. Same. I love it. This is the same I thing that I love would do. this. I love Yeah. this. So Why not? start, keep dating and asking people and helping them. Yeah. Again, we Really, start again. really, yeah. Tutorials. Oh, we got this. We didn't try this. Yeah, Sorry. heart to heart. Heart to heart.
Anyway, these were basically, we're just using the top ones, right? So anyway, the idea behind these cards was basically conversations. I think a lot of times we meet people, हम बातें करते हैं लेकिन connect नहीं करते हैं. Right. You know, superficial level पे बात करके छोड़ Okay. देते हैं. So these were some questions that we had taken out. What about your life today would shock the 19-year-old you? I think one, that I'm married. I Okay. never thought that would happen. I wanted to be single all my life, just have fun. Didn't want to get married. Number two, everything that we've done with the content. I've done live events, sold out auditoriums, building out this YouTube channel, building out the work that we've done. That would be, I think, the biggest. And I think number three, I feel I'm much better looking now than I was when I was As a 19 and child. 20. Oh wow. Yeah, right. Like, don't worry, beta, it gets better. Yeah. Well, I mean, everything. Like, I'm more fit. I feel better. I've got more energy. I'm just happier. Kafi cheezein hain. That's a nice one. When did you last cry and what was it about? All right. So I'll do two things. One, I cry in movies all the time. Anytime scenes come. Because like I get very engrossed in movies. मैं 2 घंटे की movie बिना break के देखता हूँ. 3 घंटे, 4 घंटे. So I do cry in movies. And secondly, a close family member had passed away. And you Yeah. you did shed Yeah, that, yeah. Yeah, very important. You do. This is a good one. What's your weirdest habit? I think I talk in my sleep and I converse and I Oh, we had roam that. around in my sleep. You roam around. You're scared of ghosts and you talk in your sleep. Yeah, I enact it out. मतलब अगर मेरी नींद में लड़ाई हो रही है तो मैं लड़ रहा हूँ बेड पे खुद ही. मैं गालियाँ दे रहा हूँ नींद में. At times पहले क्या होता था, so like I've done a lot of cold approach, right? So sometimes I'd start dating girls, like even with my wife when we started dating. So मैं नींद में ही I was trying to approach girls, So you know. sweet. I was with my friend and I'm like, hey, bro, let's go talk to her. And she's like, what? And she's Talk like, to who? she's there. she's like, oh shit. Yeah, I'm like, baby, I mean, force of habit. ये अभी का नहीं है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं. If you could be remembered for one thing, Yeah. what would you want it to be? Changing the dating landscape of the country, helping men be the best version of themselves, helping them not be lonely, helping them connect more, and making the country a more social place. Lovely. Yeah. Thank you. And thank you for being on this journey with us. Thank you, Divya. It's a pleasure. Absolute pleasure. So, great. Sorry.